आज डीएनए की शुरुआत पाकिस्तान की अक्सर होने वाली बेइज्जती से जुड़ी खबर से करने वाले हैं और आतंकवाद के मसले पर हर मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती इसी बात पर होती है कि वो खुद को इसका पीड़ित बताता है, लेकिन पूरी दुनिया हंसते हुए उसे कहती है तुमसे ना हो पाएगा, तुम अपने झूठ को सच साबित नहीं करवा पाओगे। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक एजेंडे के तहत बार बार यह बताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान दरअसल आतंकवाद से पीड़ित है। इस बार इसी मसले पर पाकिस्तान की यह बेइज्जती संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हुई है। भारत ने 1 दिसंबर को 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता ग्रहण की है और इसी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के संवाददाता ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से आतंकवाद पर एक सवाल पूछा। भारत के विदेश मंत्री ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो गया। स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिलबिला उठे और बिलबिलावल भुट्टो बन गए। वो पाकिस्तान की हुई बेइज्जती देखकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी मर्यादा भूल गए। हम आपको सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर एस जयशंकर का वो जवाब सुनवाते हैं जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So, look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. देखा जाए तो पाकिस्तानी पत्रकार ने चालाकी से यह सवाल पूछा था। उसका मकसद था आतंकवाद का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने का, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमेशा की जाने वाली यह कोशिश एस जयशंकर ने बड़ी ही बेबाकी से नाकाम कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के तौर पर ही देखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि करीब 2 साल के कोविड-19 महामारी के दौरान भी, उस दौर में भी, उसके बावजूद भी दुनिया यह नहीं भूली कि आतंकवाद की जड़ कहां है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि सांप उनको भी काटता है जो सांप पालता है। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region.
वैसे पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का एस जयशंकर केवल जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने जवाब से पाकिस्तान की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश करता रहता है। एस जयशंकर ने लादेन और संसद हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के चेहरे से झूठ का नकाब भी हटा दिया। आपको यह भी सुनना चाहिए। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. पाकिस्तान के गाल पे तमाचे पड़ रहे थे। इसकी आवाज बेशक नहीं आ रही थी, लेकिन कराहता हुआ पाकिस्तान जरूर दिख रहा था। वैसे चेहरे से नकाब हटा तो पाकिस्तान में हंगामा हो गया और पाकिस्तान में ताजे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को एस जयशंकर जैसे मजे हुए नेता को जवाब देना की पूरी कुलबुलाहट सी मच गई। और हालांकि बिलावल भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नासमझ साबित हो गए, वो अपने बयान के जरिए खींच उतारते हुए नजर आए। वैसे सच तो यह है कि बिलावल भुट्टो की ऐसी बयानबाजी किसी सड़क छाप छुटभइये नेता वाली है। देखा जाए तो बिलावल को अंतर्राष्ट्रीय मंचों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान ही नहीं है। हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वैचारिक मतभेद का होना ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो की ऐसी बयानबाजी व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी लगती है। जिस ओसामा बिन लादेन की बात से बिलावल को मिर्ची लगी, उसी लादेन को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान शहीद तक बता चुके हैं। और लादेन के साथ पाकिस्तानी नेताओं की संवेदना पूरी दुनिया समझती है। पाकिस्तान का मुंह आतंक की कालिख में काला हो चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र पहचान चुकी है। बिलावल की छवि पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी एक वक्त ये थी और है, रिच स्पॉइल्ड किड। वही है जरदारी के अमीरी में पैदा हुए, अमीरी में रहे और हमेशा अपने को एंटाइटल समझते हैं, राइट। तो वो रहा। और अभी भी जो इनको पोर्टफोलियो मिला फेयर एनफ जो फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो इसलिए मिला इनकी अपनी पार्टी के बूते पे, जो इनके ग्रैंडफादर के नाम पे चल रही है पार्टी, इनकी मदर के नाम पे, राइट। तो एक तरह से ये आप जैसे मान लीजिए डायनेस्टीवाद है पाकिस्तान का, और ये रिच और स्पॉइल्ड और लाइट वेट लीडर माने जाते हैं। इनकी बात को कोई वजन नहीं, बट बात है क्योंकि पार्टी है तो उस पार्टी को कोएलिशन पार्टनरशिप में होना था, तो इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो मिल गया। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरह से, जिस कलर से वो दुनिया को देखना चाहते हैं, वही रंग बताते हैं। तो यस, हिस्ट्री है कि इन्हीं के ग्रैंडफादर भुट्टो के टाइम पाकिस्तान की आर्मी का ये हाल होता, बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी, हिस्ट्री है वर्ल्ड में इस तरह की, राइट, जो हुई। तो अब होता क्या है कि आपकी जो पेनफुल मेमोरी है उसको आप याद नहीं करना चाहते, तो बिलावल भुट्टो भी वही कर रहे हैं। जो पेनफुल, जो सैड रियलिटी और हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ना उसका जिक्र करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, ना उसको अपने जहन में रखना चाहते हैं। ये आगे दिखाना चाहते हैं भारत को लेकर के, जो भी कुछ भारत से जो भी इन्हें इरिटेशन है, कहीं ये हेट्रेड है कुछ हद तक और ऑब्सेशन है, परंतु अपनी हिस्ट्री क्योंकि पेनफुल है ना, दर्दनाक है, उसको कौन याद रखना चाहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक छोटे कद के नेता नजर आते हैं। उनकी सोच में अदूरदर्शिता है, आतंक परस्त मानसिकता से वो ग्रस्त नजर आते हैं और इसी वजह से वो इस तरीके के भ्रामक और तथ्यविहीन बयान दे रहे हैं। और जाहिर है कि वो एक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पद पर जैसा व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार से वो बहुत ही दूर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस जिम्मेदारी का बिल्कुल भी जो है सम्यक तरीके से निर्वहन करने के योग्य नहीं है। और ये जिस तरीके से उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से ऐसे बयान दिए हैं, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो है और वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें अपनी बातें रखी हैं, वो उनकी अदूरदर्शी सोच को दिखाता है, ये उनकी आतंक परस्त सोच को दर्शाता है। वैसे बिलावल भुट्टो के बयान से पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गई है। बिलावल के बयान को अपरिपक्व बताया जा रहा है और बिलावल का यह बयान बताता है कि उन्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या कहना चाहिए।
और क्या नहीं। बिलावल के बयान के बाद बीजेपी ने दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के आगे जबरदस्त नारेबाजी की और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुंह से इस तरह के बयानबाजी के बाद कई नेताओं ने बिलावल भुट्टो को उनकी असली जगह भी दिखा दी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 बिलावल भुट्टो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बिलावल भुट्टो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। अब किसके घर में घुसे, आतंकवाद कहां पर था, इस पर तो पाकिस्तान कहीं अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचा है। और केवल बयान खराब देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे तो होगा नहीं। दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। बेहतरी इसी में है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर करे और आतंकवाद को पाकिस्तान संरक्षण न दे। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे, जो कि कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब और अन्य बलूचिस्तान, कराची, इन सब जगहों पर इन्होंने आतंकी घटनाएं और दहशतगर्दी का जो बयान है वो सबके सामने, और दहशतगर्दी की चीजों में किस तरीके से ये उलझे रहे हैं। हम इस मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर पूरी तरह जो विदेश मंत्री ने रुख लिया है हम उसके साथ हैं। याद कर ले पाकिस्तान, यही बिलावल भुट्टो के पिताजी जुल्फकार अली भुट्टो 1000 साल तक लड़ने की बात करते थे। आज 16 दिसंबर है, मत भूलो 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने। कश्मीर भूल जाओ, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए हमारा प्रस्ताव पारित है, हम एक दिन उसे लेंगे। इस मुद्दे पर हम भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उसके साथ हैं। Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say that Gujarat is now the Kashmir. हमारे विदेश मंत्री ने एक उदाहरण भी दिया कि अमेरिका की टिप्पणी क्या थी विदेश मंत्री कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो सांप कोई जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो सांप एक दिन आपको भी काट सकता है। तो आज पाकिस्तान की हालत यही है कि जिस आतंकवाद को उसने पड़ोसी के लिए रखा था आज उसी के लिए नासूर बन गया है, और वो नासूर पाकिस्तान को आज दिवालिया की स्थिति में पहुंचा है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को आईना दिखाया है, वो आईना देखकर पाकिस्तान शर्मा रहा होगा और घबरा रहा होगा। आज तो पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला है, आज अफगानिस्तान बॉर्डर पर वही उसके सामने खड़े हैं। आतंकी घटनाओं का सरगना रहा है पाकिस्तान, आतंक की नींव है पाकिस्तान, और उसको आईना भारत ने पहले भी दिखाया है। और यूएन जो आज हमारे विदेश मंत्री ने उसको पूरी तरह बेनकाब किया है। पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा, जब तक भारत उसको आईना दिखाता रहेगा। यानी बौखलाए बिलबिलाए बिलावल की आपने उस हरकत को तो देख लिया। हालांकि ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने की आदत पाकिस्तान को बहुत पहले से है और वो भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।